Did I ever say same manner? No, sir. No. No. LGBT or whatever, they Yes, are sir. all part of the society Thank you. which we belong to. And in our society, there is a tradition of accommodating them. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society. And next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now, we have to have some system first. The existing system, if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first, because laws don't dictate society. Society dictates the laws. है ना? जी. So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with the vivaha system, that will create some other side effects. So instead of that, prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. And it should be seen to accordingly. That is definite. But manner can change. Manner has to change. This situation, we have to have these special measures. That is why same-sex marriage, don't say that. How these same-sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that. हाउ लवली, हाउ लवली. रिजर्वेशन, ये एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में एक मुद्दा मेन है जो है रिजर्वेशन, सर. और रिजर्वेशन जब से चालू हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट रिजर्वेशन टिल द लास्ट पर्सन, बिकॉज द वंस हु डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व द रिजर्वेशन. बट शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजर्वेशन अब तक कंटिन्यू हो रहा है. आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट, क्योंकि आपने ये बोला है. तो फॉर जनरल पॉपुलेशन सर, द थिंग इज सर, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है. एंड एक्चुअली जो टॉप 1% ऑफ SC/ST है सर, दे हैव बिकम द क्रीमी लेयर, जैसे OBC में हुआ है. और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं. तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जैसे मैं हूँ सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था, पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया. तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back both in employment and education, sir? I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है. सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है, रिजर्वेशन चलेगा. जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए. और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो. कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया. ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए. So there is a stream in those who get the reservations that this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको encourage करना चाहिए. इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए.
सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए ये मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. I am so glad that you've said this. Coming from somebody like you, I am sure the country is listening. It is also true that there is a 16% youth unemployment that is there in our country, sir. It is also true, sir, that young people are not finding jobs of their choice. It is true that there is an all-time income gap between the rich and the poor. Last time such kind of inequality happened was in 1922, जहाँ the top 1% now holds 40% of our national income, sir. तो sir, unemployment में भी काफ़ी चर्चा होती है. What is your take on unemployment and what should समाज do and what should सरकार do about this? Now, एक माइंडसेट हमको बदलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली जॉब्स, इट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज ऑल्सो स्किल्ड वर्क। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, समाज में माइंडसेट ऐसा है कि हाथ से जो काम करता है उसको प्रतिष्ठा नहीं। अब 4 लाख रुपया मेरे पास है, 4 लाख रुपए का चावल गेहूं किसान के पास है। मैं और वो किसान किसी ऑफिस में गए एक साथ, मेरे 4 लाख खाने से पेट नहीं भरता, उसका गेहूं चावल खा के मैं पेट भरता हूं। लेकिन मेरी इज्जत ज़्यादा है, मेरे पास कैश है, उसके पास कैश जिसके लिए वो है उसकी इज्जत नहीं है। ये हमको, इसको कहते श्रम प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर। वी हैव टू रिगेन दैट। वो नहीं है, और इसलिए एवरीबडी रन्स आफ्टर सम सर्विस जॉब, प्रेफरेबली गवर्नमेंट सर्विस, प्रेफरेबली इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, प्रेफरेबली नियर हिज होम ऑफिस शुड बी देयर, and everybody rushes at the same door and no one gets in. While there are fields where workers are not available. I also see what we call menial jobs. Doing that, people have earned wealth. There are buildings, पान ठेला वाला, पंक्चर वाला, ऐसे लोग। एक बच्चा 8वीं में पढ़ाई छोड़ के होटल में काम कर रहा था। एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने उसको पूछा, उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं है लेकिन कमाना है, तो क्या करना चाहते हो? पान ठेला। तो उसने पान ठेला चलाया। वो उस समय 8वीं में था, अब तो जवान हो गया, शादी, लड़के बच्चे हो गए। 29 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी, पान ठेला चलाते हुए। दैट रजिस्ट्रार ट्रेंड हिम फॉर 1 year टू रन ए पान ठेला। ऐसे है, और ऐसी एक उदाहरण, उस रजिस्ट्रार ने 400 लोगों को तैयार किया है। ही इज इन महाराष्ट्र। ऐसे बहुत उदाहरण है सर्वत्र। तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, श्रम प्रतिष्ठा चाहिए। सब लोग जॉब्स में ही जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा लाइफ इससे मिल सकता है, लग्जरियस लाइफ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अब हमको बहुत पैसा चाहिए, आराम से चाहिए, परिश्रम नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ये तो ऐसा होगा कि स्वर्ग में जगह चाहिए, अमृतपान चाहिए, रोज ये चाहिए और परिश्रम कुछ न करना पड़े। तो वो सपने तो सबके सफल नहीं होते। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जा सकती है अगर हमने जॉब को ऊपर नीचे देखना छोड़ दिया। और हमने छोड़ दिया है ने, मैं जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरी सवाल नहीं है, सोसाइटी ने छोड़ना चाहिए। जो कमा रहा है उसकी प्रतिष्ठा है, हाथ से कमा रहा हो, जॉब में कमाता हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, अपना उद्योग चलाता हो, कुछ भी चलाता हो। एजुकेशन में इसकी तैयारी चाहिए।